सीमा, आवाज आ रही है मेरी? Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 9. Exercise 7.1 we have completed. Now the lecture will be started after exercise 7.1. Equality of the matrices. Equality of the matrix. A is equal to 8, 11, 15, 10, and B is equal to 2 plus 6, 7 plus 4, 20 minus 5, 8 plus 2. 6 plus 2, 8. The order of matrix A is equal to 2 into 2. Order of matrix B is equal to also 2 into 2. 6 plus 2, 8. 20 minus 5, 15. Now, order is same. This is the first condition. And second condition for equality is, there are two conditions. Number one, if the order of the two matrices must be equal. Number second, corresponding elements should be same. सेम मीन आप देखिए ये A1 elements of A are number 1, A11 is equal to B11. 8, this corresponds to this one, and this corresponds to this one.
The result is 8 is equal to 8. 15 is equal to 15. 7 plus 4, 11. 10, 8 plus 2, 10. These are called correspond. First element of first row is equal to first element of first row. Second element of second row, first row is equal to second element of first row. Sec First element of second row. First element of second row is equal to first element of second row. 20 minus 5 is equal to 15. Second element of second row. Second element of second row is equal to same. Therefore, if corresponding angle should be same, order of the matrices are same, then both the matrices are to be equal. Therefore, matrix A is equal to matrix B. Okay. Next one is the addition of matrices. Next one is addition of matrices. Addition of matrices. Two matrices are to be added when they have same order. Condition क्या होगी? And in addition of two matrices, order of the matrix should be equal. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर फर्स्ट का 2 into 2 है तो सेकंड का भी 2 into 2 होना चाहिए. Additive identity. Identity elements. Additive identity A plus O is equal to A, where O is equal to 0, 0, 0, 0, where A is a null matrix, O is a null matrix. Okay, तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मतलब if हमारा A जो है वो हमारे पास 2, 3, 5, 6 है, इसको आपको उसमें बता देते हैं पहले. आइडेंटिटी मैट्रिसेस. Matrix of addition is O is equal to 0, 0, 0, 0. तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम ये किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो सेम रिजल्ट रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ A is equal to 2, 3,
5, 6, and B is equal to, O is equal to, O is equal to 0, 0, 0, 0. So up A plus 0 is equal to 2, 3, 5, 6 plus 0, 0, 0, 0. Result is equal to 2 plus 0, 5 plus 0, 3 plus 0, 6 plus 0 is equal to 0, 0, 0. Sorry, 3, 2, 3 is equal to 2, 3, 2, 3, 5 and 6. रिजल्ट सेम रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी में सेम रिजल्ट रहता है। एडिटिव इनवर्स में एडिटिव इनवर्स में एडिटिव इनवर्स ऑफ a matrix। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हमारे पास if A is a matrix, its additive inverse is minus 1 into A। उसका माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन मैट्रिक्स को, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी उसकी साइन चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस ए। और दोनों का सम क्या होगा? ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपकी मैट्रिक्स ये बन जाएगी 0, 0, 0, 0 आनी चाहिए। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बताई थी। अब नो स्लिप ऑन एक्सरसाइज 7.2। स्लिप ऑन एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 प्रॉब्लम 1 to 3 determine whether the matrices are equal or explain your answer। Question number 1, whether the matrices are equal or not। Whether the matrix are equal or not, explain। Question 1 is 5, 9, 6, 4. This is supposed to be a matrix, and
This one is a B matrices. That is to be 6 minus 1, 18 minus 9, 5 plus 1, 2 प्लस 2। आपको सिर्फ ये दो ये दिए हैं, मैंने इसको फर्स्ट को ए कह दिया और सेकंड को बी कह दिया। तो अब हमें ये देखना है कि इसका क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। तो अब ए देखिए, ए मैट्रिक्स हमारा जो है वो 5 9 6 4 है और मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स का आंसर जो आएगा 6 माइनस 5 बी जो है बी मैट्रिक्स जो है वो 5 9 6 4। अब आप देखिए फर्स्ट इज टू फर्स्ट रो का फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो का फर्स्ट इधर सेकंड रो के फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड रो का सेकंड रो के सेकंड के इक्वल है। ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एज order and corresponding element of first A and B matrix is same, therefore matrix A is equal to matrix B। तो ये दोनों इक्वल। आप सेकंड में क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए जो है हमारे पास दिया हुआ है 3 7 और बी दिया हुआ है हमें 3 माइनस 0 2 प्लस 5। तो ये आपका आ जाएगा 3 और 7। ए का कॉलम एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए इज ए कॉलम मैट्रिक्स and B is a row matrix. Therefore, their order and elements are not equal.
Hence, A column A is a column matrices and B is a row matrices. Therefore, their order and elements are not equal. Therefore, A matrix not is equal to B matrix. ओके, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कॉलम कॉलम के इक्वल है, रो रो के इक्वल होगी तो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ये 1 2 मैंने बता दिए, 3 और 3 जो आप खुद करेंगे, चेक करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटे इसमें ऑर्डर सेम हो, फिर एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट करते हुए सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल 3y, ये कॉलम मैट्रिसेस है, ये उसने कहा इक्वल है। जब इक्वल उसने खुद कह दिया है तो इससे साबित हुआ कि दोनों का ऑर्डर और एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो एक्स की क्या वैल्यू हो, एक्स इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और y इज इक्वल टू -7 होना चाहिए, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, x इज टू 3 और y इज टू -7। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं, मैं करके 6 कर 5 ही कर देता हूँ। 5 में आपका है 0.2x, सेकेंड एलिमेंट 5 है, 0.3y and this one is the 6 is equal to 2 6 minus 1 3 2 plus 4 दोनों इक्वल हैं। देखें फर्स्ट के इक्वल करेंगे और सेकंड के इक्वल करेंगे। इट मीन्स ये फर्स्ट 0.2x इज इक्वल 2 होना चाहिए। इसमें x की वैल्यू मालूम करेंगे तो पुट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और y 0.3y इज इक्वल टू 3 के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड रो का सेकंड रो के फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 से 2/0.2, पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मोड़ देंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.3, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये पॉइंट ख़त्म करने से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 30 भी कितनी, या पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिएगा और ये पॉइंट इधर। ये x क्या उसमें डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ईच मैट्रिक्स इक्वल 2x
0.2 से डिवाइड कर दिया 2 को 10, ये x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो डेसिमल में दिया हुआ था तो ये इक्वल नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये 20 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट, वैसे भी 10 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्या आ जाता है 10 आ जाता है, ये 10 आया और इसका भी 10 आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखें दोनों के एलिमेंट्स, यहाँ पे 10x आ रहा है, 10 को इससे x की वैल्यू 10 पुट कर दें तो वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन में पुट करते हैं, वेरिफिकेशन। फर्स्ट में देखिए 0.2 इंटू 10 ये 5, 0.3 इंटू 10 और ये कितना आएगा 6। आप देखिए 10 टू द 20 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया और इसको 3 आ गया और ये 5 और ये 6। क्या हमारा रस्ट इसका भी आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें सेम आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया और ये 6। दोनों x और y की वैल्यू मालूम करके उसमें पुट कर देंगे, तो ये 2, 3, 5, 6। देखिए दोबारा से हमने x की वैल्यू मालूम कर ली, इधर x की वैल्यू 10 आई, इधर x की वैल्यू 10 आ गई। ये x की वैल्यू फर्स्ट में लेफ्ट साइड में पुट कर दी, क्योंकि 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और 0.3 को 0.3 को 10 से y की वैल्यू भी 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ और इक्वल, देयरफॉर दीज आर इक्वल, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स की किस वैल्यू से ये ट्रू हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 7.2, ये जल्दी से करना होगा। 5 रूट एक्स प्लस 5 रूट वाई 5 रूट 5 रूट इज इक्वल टू 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट। देखें आप कंपेयर करेंगे 5, इसमें प्लस नहीं है, ये 5 रूट एक्स इज इक्वल टू 5 रूट के इक्वल लिखा, इधर हमने 5 रूट वाई जो है वो 5 रूट के इक्वल लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 5 रूट ओवर 5 रूट, तो ये 1 आ जाएगा। ये भी y इज इक्वल टू 5 रूट ओवर 5 रूट, ये भी 1 आ जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 रूट एक्स 5 रूट वाई 5 रूट 5 रूट इज इक्वल टू 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट। आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 5 रूट इंटू 1 5 रूट इंटू 1, ये 5 रूट, ये भी 5 रूट, ये 5 रूट,
ये 5 रूट दिया हुआ है, ये 5 रूट, ये भी 5 रूट। यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये 5 रूट, ये भी 5 रूट, 5 रूट, 5 रूट। ऑर्डर और एलिमेंट सेम हो गए, देयरफॉर दे आर इक्वल। उसने पूछा है इनकी एक्स और वाई की किस वैल्यू से इक्वल हो जाएगा, तो हमने वैल्यू मालूम करके वेरीफाई भी कर दिया। ओके, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो ये वेरिफिकेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 6 भी हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है माइनस करने के लिए, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो ये आपको इसको 6, 7 से ऑनवर्ड एडिशन, फिर इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्वर्स जो है 11, 12, 13, 14 जो है, ये 11 क्वेश्चन के 11, 12, 13, 14 की साइन चेंज कर दें तो इन्वर्स बन जाता है। ओके, तो 7, 8, पहले तो देखिए इफ पॉसिबल, अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे देन दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऐड करना है। तो ये फर्स्ट जो है ये भी नहीं है, 7 जो है ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 8 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 0.7 में 2 माइनस करेंगे और 0.8 में 4 माइनस करेंगे। ओके, तो ये कौन कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 3, 5, 9, 4, फॉर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, order should same, order should be सेम। ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2 into 2 ऑर्डर है, 2 into 2, और ये और इसका ऑर्डर है 2 into 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1, नॉट पॉसिबल। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। सेम ऑर्डर में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे 9 हो जाएगा और आपका 10 हो जाएगा, 7 और 8 नॉट पॉसिबल। फर्स्ट में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये खुद करना है, 0.7 में से 2 को माइनस करेंगे, 0.8 में 4 को माइनस करेंगे, 0.9 को में से 9 को, और 0.4 में से 6 को। ये 9 और 10 जो है, और ये ट्राई करना है योर सेल्फ, सब्ट्रैक्ट करने की नहीं आएगा तो फिर मैं आपको 9 से ऑनवर्ड करवाएंगे, और उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। क्योंकि टाइम बहुत कम है बेटे, टाइम पे आया करें। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, बहुत कम बच्चे आए हैं, जिसकी वजह से ये जितने बच्चे क्लास में होते हैं उतने हैं नहीं, बहुत कम बच्चे आते हैं। शायद वो समझते हैं कि हमें आता है, आने के बावजूद भी अगर दोबारा से टीचर से पता चल जाए, हो सकता है कोई चीज़ नहीं बताई जा रही हो। अगर नहीं बताई जा रही, हो सकता है कि वो आपको रिवाइज़ करने से पहले से बेहतर आपको आ जाए। इसलिए क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। अगर आपको आती भी है तो आप भी क्लास अटेंड करनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद मैंने जब क्लास आइंदा स्टार्ट होगी, उसमें आप में से किसी बच्चे को ज़रूर पूछा जाएगा कि आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं, ताकि मुझे हमें पता चल जाए। क्लास में ही हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, पूछने का अमल कॉपी पे करके दिखाएंगे, आप स्क्रीन शेयर करेंगे उसमें।
इंशाल्लाह। तो मैं पहले से आपको बता दिया स्क्रीन जब जिसका नाम लिया जाएगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर नहीं आएगा ताकि आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, तो अगर उसी तरह के कोई और क्वेश्चन हो तो आप खुद करने के काबिल। ओके, तो इंशाल्लाह अब 1 सेकंड है सिर्फ, अब ख़त्म होने को है। देखिए अपने वालिदैन टीचर्स की इज़्ज़त का ख्याल रखें, उनके लिए, अपने लिए, अपने स्कूल की इज़्ज़त के लिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त के लिए, टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर की इज़्ज़त के लिए, सब सब्जेक्ट में, नॉट टू बी ओनली मैथ्स, तमाम सब्जेक्ट्स में कलेक्टिवली मार्क्स होंगे तो परसेंटेज आती है। और आपको आइंदा जब एडमिशन होगा तो टेस्ट बेस के ऊपर होगा बेटे, देखिएगा। इस वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसा ना हो कि क्लास में नंबर क्योंकि आ भी जाएँ तब भी वो आपके नए कॉलेजों में एडमिशन के लिए टेस्ट बेसिस बन जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आपको आना चाहिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट लेंगे तो साइंस के सब्जेक्ट का आपको टेस्ट लिया जाएगा। ओके।